So guys, CGCAT 2026 results have been declared and many congratulations to all those who have been shortlisted. There has been a lot of query from both shortlisted and not shortlisted candidates regarding the high cutoff, documentation and uploads, plus category and character certificates, as well as the PSB preparations for their upcoming PSB. So please watch the video till the end and do not skip in between. I hope that this video will solve all your queries. If not, then you can ask your query in the chat box. So guys, first starting with the high cutoff, it has been 234 this year. ये गाइस अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर कट ऑफ 194 199 के आसपास गई थी एंड इस साल की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गई है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो मेरी जान पहचान के भी हैं, दोज कैंडिडेट्स whom I know and who have cleared these exams, CGCAT examinations in their previous attempts. पिछले 4 साल से वो क्लियर करते हुए आ रहे हैं, 4 टाइम्स उन्होंने क्लियर किया हुआ है. सो दे हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम एंड देयर आर मेनी अदर्स हु बिलीव कि जो उनके नंबर्स आए होंगे, they are not satisfied with the marks they might have scored in their examination. So due to this doubtful reason, there have been a lot of questions. So I would like to suggest कि आप लोग if you want a solution, what you can do is file an RTI, and in the RTI application you can ask for your response sheet or the answer key. Now talking about those candidates who were not able to clear in their first or last attempt. So guys, first of all, जिनका last attempt था, no need to feel bad or discouraged. This is not the end of the world. There are many second options available. In fact, अभी in the next upcoming few days, notification for the CAPF will be released. Apart from that, जिन्होंने first time में ही नहीं clear किया है, so this is not again the end of it. आपके पास पूरा 1 साल रहेगा to prepare, because this year we saw that there were some questions from the 11th and 12th class physics chemistry. So you should go through the syllabus on the ICG website, because काफ़ी सारे candidates की expectation ऐसी रहती है कि जो syllabus है it will be till 10th standard for physics and chemistry. But no, this is not the case. वहाँ पे website पे clearly mentioned है, and I will also provide टेलीग्राम लिंक जहाँ पे आप जाके ये सारी PDF देख सकते हैं फॉर द सिलेबस, वहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी. सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं दैट व्हाट इज़ द ट्रू सिलेबस ऑफ द CGCAT एग्ज़ाम. You can prepare accordingly, and please do not forget to analyze what kind of mistakes that you have made in this attempt. Where were you lacking in which section, and prepare accordingly. प्लस काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का एक और जो डाउट है वो मैं क्लियर यहीं पे कर देना चाहता हूँ. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को लगता है कि जो CGCAT है इट इज़ हैपनिंग 2 टाइम्स इन अ ईयर. सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू कि ये जो CGCAT एग्जामिनेशन है इट हैपन्स ओनली 1 टाइम फ्रॉम द लास्ट ईयर, बिकॉज देयर वाज अ नोटिफिकेशन, और उसके अकॉर्डिंगली जो ये रिक्रूटमेंट साइकिल है AC की, CGCAT असिस्टेंट कमांडेंट, सो यहाँ पे आपका जो रिक्रूटमेंट है इट हैपन्स ओनली 1 टाइम्स इन अ ईयर. एंड इसी वजह से जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो हमें इस बार ज़्यादा देखने को मिली थी. सो आई होप कि नेक्स्ट ईयर भी जो हमारी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं इसी तरह रहेंगी, एंड यू गाइज शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, एंड आई होप दैट you will clear it in your next attempt. Now, talking about the queries of the candidates who have been shortlisted. So first of all, what you will have to do is fill your previous PSB, FSB and SSB details. यहाँ पे मेजर कैंडिडेट्स बहुत मिस्टेक कमिट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन AFSB एंड SSB. तो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि दी SSB is for the Indian Navy, Indian Army and Indian Air Force only, whereas PSB and FSB is for the Indian Coast Guard only. And the one more major point of difference is the number of recommendations. In SSB you get recommended only once, that is in conference, ठीक है. But in PSB, in the Indian Coast Guard, you get recommendation 2 times. First time in the stage 1 PSB, ठीक है. First time in the PSB, which is the stage 1 of the SSB, and second time if you have performed well
then in the second time FSB, which is the stage 2 of the SSB. So for example, आप यहाँ पे कोई भी मिस्टेक मत कमिट करिएगा। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि एक कैंडिडेट ने 2 बार अपना आईसीजी स्टेज 1 रिटर्न क्लियर किया है, सो जाहिर सी बात है ही विल गो फॉर द पीएसबी। सो लेट्स से कि ही विल अपीयर फॉर द पीएसबी 2 टाइम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो यहाँ पे ही विल एंटर नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर 2। अब यहाँ पे उसके बाद पूछेगा कि वेदर रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड। लेट्स से इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ही वाज नॉट रिकमेंडेड and in the second attempt he was recommended. So since he was recommended in the second attempt, he will go on to the next stage, which is the FSB. So now in the second attempt his FSB will become number 1. Okay, so this is how the procedure follows. Whereas in SSB case, whether you appear for AFCAT, Air Force, AFCAT or Army or any other tech entry in the Army or Navy, then in this case, let's say a candidate goes to Bhopal और वहाँ पे he gets screen out, then also he is not recommended. If the candidate gets conference out, then also he is not recommended. But if a candidate gets recommended in conference, then he is recommended. So there is only one case, whether you are recommended or not recommended in the SSB case. Okay, I am telling you this in detail because there are many candidates जो कि यहाँ पे mistake commit कर देते हैं, and due to this उनका जो number of attempts रहता है which they are writing in their PIQ form after they have been recommended for FSB. नोएडा में FSB में बैठ के जब वो लोग अपना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फिल कर रहे होते हैं इन द PIQ, दे मेक मिस्टेक्स एंड ड्यू टू विच देयर इज़ अ डिफरेंस, और ये डिफरेंस काफ़ी शो करता है। और वहाँ पे आपको लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ था कि वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों का इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में डिफरेंस आ रहा था, स्पेशली कॉन्फ्रेंस वाले में। So please make sure कि while you are filling these details, you are also noting down these details on a rough sheet of paper, or after you have filled it, you take a separate printout of this particular page and keep it with you in the FSB. Now talking about the documentation, तो documentation जो आपको upload करने रहेंगे, it will be of 10th class mark sheet and certificate, 12th class की mark sheet and passing certificate. After that जो 4 ईयर और 3 ईयर के प्रोग्राम में है तो उनको अपनी ग्रेजुएशन मार्कशीट ईयरली या फिर सेमेस्टर वाइज अपलोड करनी रहेंगी, जो उन्होंने ऑप्शन चूज़ करा था एट द टाइम ऑफ फिलिंग देयर एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूरिंग स्टेज 1। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, जो कि अपना फाइनल पेपर दे चुके हैं और पास हो चुके हैं, एंड सेकेंड कैटेगरी कैंडिडेट्स की हम बात करें जो कि अपना फाइनल सेमेस्टर का पेपर देने वाले हैं या फिर फाइनल ईयर में। सो इन बोथ दीज केसेस यहाँ पे आपको एक फॉर्म सबमिट करना रहता है। अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात करूँ जो कि पास आउट हो चुके हैं, फाइनल पेपर दे चुके हैं, सो इन दैट कैटेगरी आपके पास या तो आपका ओरिजिनल डिग्री होना चाहिए या तो आपके पास प्रोविजनल डिग्री होना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट इन द पोजीशन ऑफ योर ओरिजिनल डिग्री और प्रोविजनल डिग्री, सो आपको क्या करना है, वहाँ पे एक नॉन इशुएंस ऑफ डिग्री का फॉर्मेट है जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा एज वेल एज ऑन द टेलीग्राम चैनल। आपको ये अपने कॉलेज से बनवा के उनके कॉलेज के लेटर हेड पे आपको ये सबमिट करना है, वहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। जिसके पास अपनी इन दी स्पेस गिवन फॉर द ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट, ये वहाँ पे आपको सबमिट करना है इन नॉन इशुएंस ऑफ डिग्री फॉर द ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट, जो पास आउट कर चुके हैं और जिनके पास अभी तक ओरिजिनल या फिर प्रोविजनल नहीं है। वैसे तो आपके पास प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए क्योंकि ये 1-2 महीने में मिल जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द कैंडिडेट्स, कैटेगरी 2 कैंडिडेट्स जिनके पास फाइनल ईयर में वो अपीयर कर रहे हैं और उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सो उस कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको एक अंडरटेकिंग सबमिट करनी रहती है और उसी सर्टिफिकेट को अपलोड करना रहता है, जिसका फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा और ये फॉर्मेट आपको अपने कॉलेज से साइन कराना है। अब जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में अपीयर करने वाले हैं, मैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में हैं और अपने फाइनल एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं, स्पेशली फॉर 4 ईयर एंड 3 ईयर प्रोग्राम।
तो 4 ईयर में आपके 8 सेमेस्टर्स होते हैं, तो 8वें सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले आपका 7 सेमेस्टर तक का रिज़ल्ट जहाँ तक आया है, सो 7 सेमेस्टर रिज़ल्ट तक आपका एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। सेम इज़ द केस विद 3 ईयर प्रोग्राम। अप टिल 5th सेमेस्टर रिज़ल्ट आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। सेकंड इसमें कंडीशन है दैट ये जो आपका 7th सेमेस्टर रिज़ल्ट है या फिर 3 ईयर रिज़ल्ट और 3 ईयर प्रोग्राम में आपका जो 5th सेमेस्टर रिज़ल्ट है या फिर 2 ईयर की जो मार्कशीट है, ये आपका इशू हो जाना चाहिए बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, दिस इज क्लियरली रिटन। सेकेंड ईयर मार्कशीट with the date of issue on or before the closing date of application in 3 years case, 3 year program case or 3 year mark sheet with the date of issue on or before closing date before, ठीक है, before the closing date of application for a 4 year program। और आपका एक में भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए for the candidates who are in their final year and yet to appear in the final examination। Now talking about the category certificate. So guys, category certificate, there are many candidates who are like messaging me and asking me about this and also in the group. So what I would like to tell you is, please read the advertisement carefully. You are applying for a central government job. तो यहाँ पे आपको स्टेट की कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगानी होती, यहाँ पे आपको अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की कैटेगरी सर्टिफिकेट लगानी होती है। मैं इसका एक टाइटल की हेडिंग स्क्रीनशॉट करके इस स्लाइड में डाल दूंगा ताकि आप उसे पढ़ के देख सकें। ओके, नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जो सर्विस कैंडिडेट्स होंगे या फिर पहले से ही किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे, उन्हें एक एनओसी भी सबमिट करना रहता है। ओके, सो गाइज ये है हमारा जो टाइटल रहेगा फॉर कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो SC ST और OBC के हैं, उन्हें एक ऐसा टाइटल वाला सर्टिफिकेट सबमिट करना रहेगा जो कि वो अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट्स या फिर जहाँ पे भी वो रहते हैं वहाँ से बनवा सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट आपका रहेगा, इसका टाइटल फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय दी, ये अभी OBC का है तो OBC अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका टाइटल रहता है। सेम यहाँ पे आपका जो मैंने नॉन इशुएंस या फिर डिग्री के लिए बताया था, तो ये उसके लिए फॉर द कैंडिडेट्स हु आर अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन और उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं हुआ है और उनके पास डिग्री नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए। ओके, अब बात करते हैं गाइज जो डॉक्यूमेंटेशन रहता है। सो गाइज सबसे पहले तो आपकी जो PSB है, इट विल बी ओनली अ 1 डे इवेंट। PSB इज लाइक स्टेज 1 ऑफ द SSB एंड इट विल बी अ 1 डे इवेंट जो कि आपकी कंडक्ट करी जाएगी नोएडा, गोवा, चेन्नई, कोलकाता। दिस ईयर देयर हैव बीन 2 more centers which have been added, which is Shillong and Gandhinagar. So you have given the preference for your stage 2 in the application of the stage 1 itself, ये आपसे दोबारा नहीं पूछा जाएगा। और एज पर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द स्लॉट, ये आपको ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया जाएगा जब आप अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लोगे। ठीक है, एंड इन दिस PSB you will be given 2 type of test. First is CCBT and the second is PPDT। ठीक है, so first CCBT is the computerized cognitive battery test and second picture perception test। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। Now coming to the documents which you will be required to carry in your PSB। सॉरी गाइज, ये जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी जाएगी। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दी PSB डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले तो आपको अपना जैसे ही आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके सबमिट कर दोगे, यू विल बी गिवन सम टाइम एंड आफ्टर दैट योर एडमिट कार्ड विल अपीयर फॉर योर स्टेज 2 PSB। तो यहाँ पे आपको अपनी 2 कॉपीज़ लेके जानी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन एज वेल एज एडमिट कार्ड की। तो एप्लीकेशन के साथ साथ आपको अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी कैरी करने पड़ेंगे फॉर 10th 12th की पासिंग सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स, कॉलेज की मार्कशीट्स और डिग्री। जिसके पास प्रोविजनल डिग्री है वो प्रोविजनल लेके जाएगा, जिसके पास ओरिजिनल है वो ओरिजिनल लेके जाएगा। जिसके पास ये दोनों ही नहीं है उसे नॉन इशुएंस अपने कॉलेज से इशू करवा के लेके जानी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल हैव टू कैरी योर ID कार्ड इन ओरिजिनल।
12 color passport size photograph with blue background एंड अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि इसको कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं। सो गाइस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं तो वो अपने कॉलेज से ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसे अपने स्कूल से भी बनवा सकते हो। एंड नेक्स्ट इज़ आप कोशिश करिए कि आप ये किसी अपने आसपास के पुलिस स्टेशन या फिर एसडीएम ऑफिस या फिर किसी ऑफिशियल गेजेटेड क्लास ए ऑफिसर से बनवाएं, बिकॉज ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट कर देते हैं इसी चीज़ के लिए, सिर्फ एक इस चीज़ के लिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। यही दो चीज़ें ज़्यादातर कैंडिडेट्स की इशू क्रिएट करती हैं वहाँ पे, इसलिए मैं इन्हीं दो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ज़्यादा बोल रहा हूँ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कोशिश करें कि आप अपनी पीएसबी में जाने से 2 से 3 दिन पहले बनवाएं या फिर 1 हफ्ता पहले बनवा के रख लें, बिकॉज ठीक है, अगर किसी का पहले से भी बन रखा है, दिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स। तो अगर मैं आज मार्च में बोल रहा हूँ तो इट शुड बी वैलिड टिल जून जुलाई। ठीक है, जून जुलाई तक अगर ये वैलिड है देन वेल एंड गुड इनफ। अगर नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि यू शुड गो एंड गेट इशू अ न्यू वन फॉर योर सेल्फ। नाउ टॉकिंग अबाउट योर एनसीसी सर्टिफिकेट, ये तो सिर्फ स्टेज 3 के लिए एप्लीकेबल है, बट आप इसे भी अपलोड कर सकते हैं इन दी अदर सेक्शन में। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अगेन, अगर किसी की कैटेगरी सर्टिफिकेट पे वैलिड अप टू नहीं लिखा है, यानी कि वैलिडिटी नहीं दी हुई है, देन इट इज़ वैलिड फॉर योर होल लाइफ टाइम। अगर उस पर वैलिडिटी दी हुई है, ठीक है, सो यू विल हैव टू चेक व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ योर कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। मोस्ट केसेस में 1 साल की देते हैं अगर आप किसी और स्टेट से इशू करवाते हो। एंड ईडब्ल्यूएस स्पेसिफिकली, ईडब्ल्यूएस का भी काफ़ी इशू क्रिएट होता है, तो जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं वो अपनी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को इशू करवा लें जितना जल्दी हो सके, बिकॉज दिस ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इशू ओवर देयर। और आप में से काफ़ी लोगों का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका डेट ऑफ इशू स्पेशली ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के केस में लिया गया होगा। सो मेक श्योर कि जो आपने वहाँ पे दिया है और जो आप अपलोड कर रहे हो उसमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो। ओके, so guys, since the video has become too long, I will be making one more video regarding PSB and how you should approach it so as to perform better in it. So kindly subscribe and share. Thank you.